Dear students, once again Assalamu alaikum. Chapter 11 Electrostatics. Today we are going to discuss potential difference and electric potential. In your first year text, you have studied gravitational potential energy, gravitational potential energy difference or potential difference, in which higher point from the surface of earth was treated as high potential and closer to the earth was treated as lower potential. In analogy to gravitational potential energy, here we are focusing on electric potential energy. By convention, positive charge is considered to be high potential energy and negative charge is treated as lower potential energy. So, whenever you put charges together that may be similar or dissimilar, in the early stage they have a difference of energy. So, if they are the same charges, they will repel each other by exerting force on one another until electrostatic equilibrium is established. When electrostatic equilibrium is established, then all the charges will be at the same electric potential. This holds for similar positive and similar negative charges. But when there are positive and negative charges, you know by convention test charge is positive. When you place a test charge between them, the test charge will run from the positive side towards the negative side, meaning that there exists a difference of energy between the 2 points. So, charge is moving from higher potential to lower potential. Like in gravitational field, stone falls from top point to lower point. Top point is at higher potential, gravitational potential, and lower point is at low gravitational potential. In gravity, when you release a stone, it comes to the towards the earth by itself. But if you want to lift a stone, you have to do work on it, and that work will be stored as a gravitational potential energy in the gravity field, which is conservative field. And you know, the storage of energy is because of the conservative field. Electric field is also conservative, so electric charge energy will also be stored when the charges are shuffled from one place to another place with the reference to the other or with reference to the source charge. So, I have just given a slight picture of that one. So, whenever you have got positive charges, initially they have got potential energy because of their position. So, they will repel each other, move here and there, and will stop at a certain point, and at that point electrostatic equilibrium is established. At electrostatic equilibrium, all the charges now has the same electric potential energy. Similar is the case when there are negative charges, they will repel each other. When they repel each other, that means there is a potential difference, there is a electric potential energy difference. So, they repel each other, they exert a force on one another until electrostatic equilibrium is attained, at which the electric potential difference is 0. Now, when there is a positive and negative charge, you know, you check everything with the help of the test charge, which by convention is positive. So, that test charge will move from positive to negative by itself. But if you want to move it from negative to positive, you have to do work. So, now come to the point.
that is potential difference. Whenever there is a word difference, difference means it is between two things. Like the price of a pencil is 10 rupees, the price of a pen is 20 rupees, then what is the difference? So 20 minus 10 is the difference. So it is between two things. Whenever there is a difference, it must be between two things. So potential difference, meaning that there is a difference of potential, electric potential difference. What a potential difference is. Now we are coming to the exact point. Potential difference is the amount of work done in moving a unit positive test charge Q naught from a point of lower potential to a point of higher potential within the electric field of the source charge. Keeping electrostatic equilibrium is called electric potential difference. जिस तरह मैंने कहा टॉप से पत्थर को गिराओगे नीचे खुद बहुत आएगा, लेकिन नीचे से ऊपर ले जाने के लिए आपने वर्क करना होगा। इसी तरह अगर पॉजिटिव चार्ज से दूर होते जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो जितना दूर होते जाओगे, दूर पॉइंट लेते जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके दरमियान क्या होगा? कम होगा। और जितने चार्ज के नज़दीक 2 पॉइंट लोगे पोटेंशियल डिफरेंस उसके दरमियान ज़्यादा होगा, बिकॉज यू विल हैव टू डू मोर वर्क। अब देखो सिंपली समझा, तो मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव को ट्रीट करते हैं हाइयर पोटेंशियल, नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल। लेकिन अगर आपके पास सिमिलर चार्ज है तो सिमिलर चार्ज से आप जितना दूर दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है, और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाता है? वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो जो चार्ज के नज़दीक होते हैं तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? वो ज़्यादा होता है, और बिकॉज यू हैव टू डू मोर वर्क। अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और आपके पास सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो सोर्स चार्ज से अगर दूर 2 पॉइंट लिया जाए तो उसमें आपने कम काम करना पड़ेगा, आपको कम काम करना पड़ेगा। लेकिन नज़दीक वाले हो तो आपको ज़्यादा, बिकॉज ऑफ रिपल्शन इफेक्ट, रिपल्शन उसका क्या होता है? वो ज़्यादा होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from a point of lower potential to a point of higher potential within electric field of the source charge, keeping electrostatic equilibrium is called potential difference. इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हम छोटे छोटे सेगमेंट लेंगे जिसमें हमारा फोर्स और जो चार्ज का फोर्स है, कूलम फोर्स है, वो हर लम्हे पर सेम रहे। मैंने ये चेंज होते हैं लेकिन विद इन द स्मॉल सेगमेंट वो चेंज नहीं हो रहे हैं, ये मतलब है कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ताकि हमारा फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स हर लम्हे पे बराबर रहे, और उसकी वजह से जब हम कैलकुलेशन करते हैं वो दोनों क्या आए? सेम आए। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive test charge from a point of lower potential to a point of higher potential is called potential difference. इसको हम क्या कहते हैं? potential difference कहते हैं। potential difference is denoted by delta V, इसको delta V से डिनोट किया जाता है। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन एंड मैथमेटिकल इक्वेशन उसका क्या आएगा, तो ये ज़रा देख लो आप, ज़रा ये देखो, ये कर्सर को, ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यों है, और इधर आपने टेस्ट चार्ज को रखना होता है। ये देखो टेस्ट चार्ज हैं, और ये आप क्या करते हैं? बी से ए की तरफ ले आओगे। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं, और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर टेस्ट चार्ज को इधर छोड़े तो ए से बी की तरफ खुद बहुत भागेगा। लेकिन अगर बी से ए की तरफ आप ले आना चाहे, यू हैव टू डू वर्क ऑन दैट, If you want to take a test charge from B to A, you have to do, because test charge by convention is positive. We know that test charge by convention is positive. हमें पता है positive है, so it moves. ये क्या करता है? It moves from a point of higher potential to a point of lower potential by itself. Higher से lower की तरफ खुद पहुँच जाएगा। However, ताहम, if we move it from a point of lower potential to a point of higher potential, we have to do work. जब हमने लोअर से हायर की तरफ ले जाना है तो हमें उस पर काम करना होगा। यानी अगर चार्ज से दूर पॉइंट है और एक नज़दीक है, तो दूर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम है, नज़दीक पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो कम वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा वाली की तरफ जब आप लाओगे तो यू हैव टू डू वर्क। एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कंजर्वेटिव, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव, सो द वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
या चार्ज में क्या हो जाएगा, एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। देखो, consider a unit positive charge, test charge Q naught is moved from point of lower potential B to a point of higher potential A within electric field, keeping electrostatic equilibrium. I have cleared electrostatic equilibrium. So, what potential difference is? What we define the potential difference is equal to work done against electric field between 2 points, meaning that against the direction of the electric field from lower potential to higher potential, because along the direction of electric field work will be done by the field itself, and if you move it from lower to higher potential you have to do work against the direction of electric field. So, work done against electric field between 2 points divided by test charge, that is meaning that how much work is being done on a test charge to move it from a point of lower potential to higher potential. That is what we call potential difference. You see, delta V is equal to WAB by Q naught. So, delta U, that work done from B to A is stored as electric potential energy, that is the change in electric potential energy. And we have studied in the first year that whenever there is a change in energy, work will be done. When there is no change in energy in a conservative field, no work will be done. Similar things applies over here. So, if there was a change in electric potential energy, so work has to be done. So, delta U is the change in electric potential energy, Q naught is the test charge. Now, come to delta V is VA minus, because we have moved from point B to A, So, the final point is A initial. So, difference from final to initial. So, that will be VA minus VB is equal to UA minus UB divided by Q naught. तो UA divided by Q naught आ जाएगा, UA ये देखो UA by Q naught और UB by Q naught. UA by Q naught is the electric potential 8 point A, UB by Q naught is the electric potential 8 point B, that is the electric potential 8 point B. So, that is the difference of electric potential energy, which is responsible for the work. When there is no potential difference change, no work will be done. So, UA is electric potential energy 8 point A and VA electric potential energy 8A. VA represent electric potential and UA represent electric potential energy. Electric potential energy is the energy possessed by a body because of its position with respect to the charge, and VA is the electric potential at A when the charge is brought from infinite extent to a point A within the electric field. We are going to clarify in the later part of this lecture. Now, UB is equal to electric potential energy 8B and VB is electric potential energy 8 point B. Now, we are coming to electric potential at a point or absolute electric potential at a point. Whenever you are taking to find out electric potential at a point, you have to take one point outside the electric field, or you can say one point must be selected at infinity, like you have done gravitational potential energy at a point in your first year, in which you have taken one point outside the gravity and the other point was taken inside the gravity. So, outside the gravity was 0 and inside the gravity was something. So, something minus 0 will give you the something at a point inside the gravity. तो एक पॉइंट पे आपको देता था. Similar is the case, बिल्कुल उसके साथ एनालॉजी है उसकी. So, electric potential at a point or absolute electric potential, ये क्या होता है? The amount of work done in moving a test charge from
a point outside the electric field infinity to a point within the electric field of the source charge against the direction of electric field, keeping electrostatic equilibrium. Keeping electrostatic equilibrium is called electric potential at a point. ये देखो फर्ज करें मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट जो है आउटसाइड है, ये पॉइंट क्या है, ये देखो एक पॉइंट, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आउटसाइड है, क्या है, आउटसाइड है, और मैं लाता हूँ इधर ले आया हूँ, नज़दीक ले आया हूँ, तो ये इन साइड है, तो इन साइड पे फर्ज करें 20 वोल्ट है और आउट तो ज़ीरो है, फील्ड से आउट है, तो 20 माइनस ज़ीरो क्या आता है, 20 आता है, तो ये इन साइड वाली पॉइंट की क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कि नहीं है। तो सिमिलर इसका भी कर लो, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप लाएं, टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के आउट से आप इन करके लाएं, जब आउट से आप इन करके लाएं तो वो इनर पॉइंट पे जो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट कहते हैं। तो इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट, और उसमें क्या होगा, अगेंस्ट द डायरेक्शन, क्योंकि वर्क तब हमें करना पड़ेगा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। तो उसका मैथमेटिकल अगर आप देखें, यही यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, वही चीज़ है जो आपने किया, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन इसके लिए एक पॉइंट को आपने श्योरली क्या होता है, लिया होता है आउटसाइड दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए कंसिडर पॉजिटिव चार्ज सोर्स प्लस क्यू नॉट इज़ प्लस सोर्स चार्ज क्यों इज़ सराउंडेड बाय इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्लस क्यू जो है सोर्स चार्ज है और उसका अपना फील्ड है। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज़ मूव फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, जो कि आपको दिखा दिया गया है ऊपर, ठीक है ना। ये देखो, ये वाला डायग्राम है जो आपने अभी क्या, देखो ये यहाँ से आपके पास टेस्ट चार्ज बी से ए की तरफ ले आए, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले आए। अब जब आप ले आएँ तो आपको उसी तरह वो फार्मूला आपको पता है कि पोटेंशियल वर्क डन क्या होता है, वर्क डन विल बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट द 2 पॉइंट्स, दैट इज़ बी एंड ए, और डेल्टा यू से रिप्रेजेंट होता है। अब देखो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी जो अभी हमने किया वही वाला होगा, डेल्टा वी वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाई क्यू नॉट, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई क्यू नॉट, दैट विल बी इक्वल टू सिमिलर लाइक वी हैव डन for potential difference. This is also potential difference, but here one point is taken outside the देखो तो ये क्या है, यू ए माइनस यू ए बाई क्यू नॉट यू बी बाई, यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया है कि ए से हमने क्या कर दिया है, सॉरी बी से, ठीक है, बी से हम लाए हैं ए की तरफ, सेम वाला केस है जो ऊपर हमने किया है। तो अब देखो वी ए माइनस वी बी, ये आ जाएगा ये यू ए बाई क्यू नॉट, यू बी बाई क्यू नॉट, द डिफरेंस माइनस इज देयर इन बिटवीन। सो इफ पॉइंट बी इज इन्फिनिटी, अगर ये पॉइंट बी इन्फिनिटी पर है, ठीक है ना, इज इन्फिनिटी आर आउटसाइड द फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, तो फिर क्या होगा, वी ए माइनस वी ए बी जो आपने किया है, तो वी बी शुड बी टेकन इज इन्फिनिटी, दैट सिंबल इज फॉर इन्फिनिटी, यू सी, और यू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ बी यू विल राइट इन्फिनिटी। So you see electric potential outside the charge is naturally when electric field is not there, so electric potential is defined for electric field. When electric field is not there, so that will be zero over here. In similar case the charge will have no potential energy with respect to the electric field if that point is outside. So u infinity is also zero, तो 0 by q naught और ये आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, दैट विल बी जीरो, द डिफरेंस वी ए इज इक्वल टू यू ए बाई क्यू नॉट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, हेयर यू हैव टेकन पॉइंट बी एट इन्फिनिटी एंड यू सी दैट दिस इज द पोटेंशियल एट ए, दैट इज व्हाट वी कॉल एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए। To find the electric potential at any point within the electric field of the source charge, the reference point should be taken at infinity, infinity पे भी लेना चाहिए। इसका SI यूनिट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है, SI यूनिट क्या है, वोल्ट है, क्या है, वोल्ट है। वोल्ट को डिफाइन किस तरह किया जाता है, the electric potential is said to be 1 volt if 1 joule of work is done to move a positive charge from lower potential to higher potential
from lower potential to higher potential within the electric field of source charge, within the electric field of the source charge. If 1 joule of work is done to move a test charge from lower potential to a higher potential, then the potential difference between 2 points is 1 volt. If 1 joule of work is done to move a unit positive discharge from a point of lower potential to a point of higher potential within the electric field of source charge, then it is called 1 volt. Now, multiple and submultiple, 1 kilovolt 10 to the power 3 volt, 1 megavolt 10 to the power 6 volt, 1 gigavolt 10 to the power 9 volt, 1 millivolt 10 to the power minus 9 volt, and 1 microvolt 10 to the power minus 6 volt, and many more. So, that is what about the potential difference. And before we process further, I am going to display a short video that will increase. पॉजिटिव चार्ज के लिए ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो हायर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के लिए लोअर आएगा तो लोअर पोटेंशियल, सिमिलर चार्जेस होंगे रिपेल करेंगे टिल द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, अपोजिट चार्जेस होंगे अट्रैक्ट करेंगे टिल इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। यही चीज़ जो है इस वीडियो में आपको डिस्प्ले किया गया है। इसका मकसद ये है कि आपको आदी बनाना है कि आप गूगल का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि एक चीज़ मैं घंटों में एक्सप्लेन कर लेता हूँ तो ये आपको 5 मिनट के एनिमेशन में एक्सप्लेन करके दे देता है। सो लुक फॉर दैट। Particles with opposite charges attract one another. We can view this by saying that the positive particles that are far away from the negative particle have a higher potential energy, just as in the case of gravitational potential energy. Particles with the same charge repel one another. We again can view this as a case of potential energy. Although gravitational fields affect all objects in the same way, electric fields have an opposite effect on positive particles than they do on negative particles. From a negative particle's point of view, the potential energy throughout space is flipped upside down, as compared to a positive particle's point of view. Every charged particle contributes to shaping the electric potential energy at each point in space. The effect of each particle adds together. Suppose we have charged particles that are trapped inside a container. The charged particles will move to the edges of the container, causing the electric potential energy to be the same everywhere inside the container. If a container with charged particles experiences an external electric field, the charged particles inside the container will react by again moving in such a way so as to cause the electric potential energy to be the same everywhere inside the container. The
charged particles inside the container will react by again moving in such a way so as to cause the electric potential energy to be the same everywhere inside the container. In a metal conductor, the positively charged particles are always fixed at one spot and unable to move. But the negatively charged particles are free to wander around. When the metal conductor experiences an external electric field, one side of the metal will end up having more negative particles than positive particles and develop a net negative charge. The other side of the metal will end up having more positive particles than negative particles and develop a net positive charge. Therefore, the effect is the same as in the example of charged particles inside a container. The electric potential energy is the same everywhere in the metal. In an electric circuit, the negatively charged particles flow through metal wires. Metal wires that are directly connected to each other with metal connections are all at the same electric potential. सेम इलेक्ट्रिक पे है तो ये देखो आपको कड़े नज़र आ रहे हैं, स्टैंडिंग नज़र आ रहे हैं, देखो. सो एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए. इफ देयर इज एनर्जी डिफरेंस देन फाइन, चार्जेस विल फ्लो. The difference between the electric potential energy of 2 points of a circuit is what we call the voltage. When a switch closes, it causes the two different parts of a circuit that it connects to be at the same potential energy. Initially they were at the same potential energy. When the switch was closed, then potential energy difference comes. When potential difference energy comes, then the charge start to flow. जिस तरह आप स्विच में आप वो शू दे देते हैं तो करंट फ्लो कर लेता है, पंखा वगैरह जो उसके साथ लगा होता है तो वो चलना शुरू कर देता है. जब आपने स्विच में नहीं दिया होता है तो वो पंखा नहीं चल रहा होता है, बिकॉज डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या है, वो ज़ीरो है. और जब The number of charged particles that pass by each second is what we refer to as the current. तो जनाब आपने ये देखा कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सेम होती हैं, तो फिर किसी किस्म का चार्ज जो है वो फ्लो नहीं करता, बिकॉज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. तो वोल्टेज के लिए शर्त ये है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, उसके लिए शर्त ये है कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस हैं वो होना चाहिए, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. जिस तरह आप घरों में वो कर लेते हो, पंखे को जब स्विच जब ओपन होता है तो दो एंड्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सेम होती हैं तो पंखा नहीं चलता. जो ही आप बटन को प्रेस कर लेते हैं तो दो एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आ जाती हैं, डिफरेंस ऑफ एनर्जी आ जाती है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है. और इसको हम फिर क्या कहते हैं कि voltage is established between the 2 points A and B. So potential difference और electric potential में आपने देखा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है. लेकिन electric potential के लिए एक पॉइंट को आउटसाइड दी इलेक्ट्रिक फील्ड लेना होगा, क्योंकि आपने एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखना है कि हाउ मच इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. तो जिस तरह आपने ग्रेविटी में किया था फर्स्ट ईयर में, आपने जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, मेरे ख्याल में GMEM/R
वो आया था आपके पास, और पर यूनिट मास के लिए G डिवाइडेड बाई R। तो ये आपके पास क्या थी, ग्रेविटेशनल। सिमिलर इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन Now we are going to find out the electric potential at a point due to a point charge. अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालना है। ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट हेयर वी टेक इज़ पॉजिटिव। आपका जो भी दिल करता है ले लो, नेगेटिव भी ले सकते हो। अब देखो, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक potential at a point due to source charge plus Q, consider a test charge Q naught is moved from a point B outside to a point A against the direction of electric field intensity is shown in the figure. देखो, ये B point है, that is outside the electric field of that, so that point charge plus Q. A point जो है within the electric field of the source charge plus Q या point charge plus Q के फील्ड में। देखो, फ़र्ज़ करें आपने एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, या एक पॉइंट है आउटसाइड दी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप ले आए एक पॉइंट ए पर जो कि विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप क्या करते हैं, काम करते हैं इस पर, और ये काम स्टोर्ड हो जाएगा एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ चार्ज। अब देखो, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स, जिस तरह आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिलेशन निकाला था, तो इसी तरह यहाँ पर अगर देखो कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या है, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, यानी F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता था, तो आप उस केस में क्या करते थे, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी है, इन्फिनिटी से आप बॉडी को एक पॉइंट पे लेते थे, लेकिन चूंकि वो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता था, तो क्या किया आपने, इस टोटल डिस्टेंस को स्मॉल पेचेस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, कि हर पेज के अंदर फोर्स क्या रहा हो। मैंने ये नहीं कहा कि फोर्स चेंज नहीं, फोर्स इज चेंजिंग, बट विद इन द पेज फोर्स स्टेज कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर ये ग्रेविटेशनल है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्विलिब्रियम होगी, और अगर ये इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विलिब्रियम होगी। तो यहाँ पर भी उसी तरह देखें, F इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। अब देखो, ये डेल्टा R जो हमने लिया है, यानी B से A तक, ये डेल्टा R शुड बी टेकन टू बी वेरी स्मॉलर, यानी हम इसको क्या लेते हैं, बहुत छोटा लेंगे। छोटा इसी लेंगे ताकि इलेक्ट्रिक फोर्स और आपकी अप्लाइड फोर्स हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। इसमें ज़रा ये देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, चूंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है ना, तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से प्लस Q की वजह से ये इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड होगा। क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो अपवर्ड जो है ये पॉजिटिव है, लेकिन हमारा फोर्स क्या होगा, वो तो नेगेटिव, क्योंकि चार्ज को हम जोर से नीचे ले आ रहे हैं, तो वो -F होगा। क्या होगा, -F। दूसरी बात यह है कि डेल्टा R का डायरेक्शन A से B की तरफ होता है, डेल्टा R का डायरेक्शन A से B की तरफ होता है, तो हमारा फोर्स -F जो है वो डाउनवर्ड है, और डेल्टा R जो है वो अपवर्ड है। तो -F और डेल्टा R के दरमियान एंगल क्या होगी, 180 मैंने -F और डेल्टा R के दरमियान, डेल्टा R इज डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B, फ्रॉम पॉइंट चार्ज टू आउटसाइड होता है डेल्टा R। सो तो हमारा फोर्स क्या है, माइनस है, और हम तो कहते हैं कि हमने कितना काम किया अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। तो क्या आ जाएगा, ये जो है वर्क डन फ्रॉम B टू A जो आपके पास आएगा, हमने क्या किया, वी डिवाइड द टोटल डिस्टेंस इनटू वेरी स्मॉल सेगमेंट, जो हमने क्लियर की, ईच डेल्टा R, द इलेक्ट्रिक फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट विद इन द सेगमेंट। सेगमेंट के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट रहता है ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को बरकरार रखा जाए। नाउ the work done in bringing a test charge from B to point A is, जब हम B से आते हैं तो क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम B टू A, हमारा फोर्स क्या था, -F था। पॉइंट चार्ज जो है वो अप फोर्स लगा रहा है, लेकिन हम टेस्ट चार्ज को नीचे लेके आ रहे हैं, तो -F था, और डॉट है,
और डेल्टा आर का डायरेक्शन ए से बी की तरफ होता है, डेल्टा आर का डायरेक्शन ए, चूंकि हमने डेल्टा आर ले लिया, डेल्टा आर डैश नहीं है, तो ये देखो माइनस एफ डेल्टा आर cos 180 आ जाएगा, तो cos 180 इज -1, तो दैट विल बी प्लस एफ डेल्टा आर आ जाएगा। और उसी तरह वर्क डन फ्रॉम बी टू ए जो है आपके पास क्या होगा, एफ किस चीज़ के बराबर है, के क्यों नॉट बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और डेल्टा आर क्या है, आर बी माइनस आर ए के बराबर है, आर बी माइनस आर ए, बी वॉज द फाइनल पॉइंट एंड ए वॉज द इनिशियल पॉइंट। अब देखो डेल्टा आर क्या आएगा, आर बी माइनस आर ए, डेल्टा आर आर बी, और आर आपको पता है आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सेगमेंट, सेंटर ऑफ द सेगमेंट, ये देखो ये सेंटर ऑफ द सेगमेंट है, एंड सेंटर ऑफ द चार्ज, ये देखो आर इज द डिस्टेंस, ये देखो ये आर है, ये इसका सेंटर और इस सेगमेंट का सेंटर, इसके दरमियान फासला है, आर इज द डिस्टेंस विच इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी बाई 2। क्या मतलब है, अगर आर ए 3 है, आर बी क्या है 4 है, तो क्या आएगा 3 + 4 बाई 2 क्या आएगा 3.5, 3.5 लाइज बिटवीन 3 एंड 4, 3.5 लाइज बिटवीन 3 एंड 4। सो आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सोर्स चार्ज एंड द सेंटर ऑफ द सेगमेंट है। तो ये देखो, अब देखो इस डेल्टा इस से क्या निकालो, आप कर दो आर बी को निकाल दो, तो आर बी क्या हो जाएगा, डेल्टा आर प्लस आर ए हो जाएगा, डेल्टा आर प्लस आर ए हो जाएगा। अब जनाब आपने पुट कर दिए, देखो आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी बाई 2 है, तो आर ए प्लस डेल्टा आर प्लस आर ए डिवाइडेड बाई 2, ये आपने कहाँ से किया, आपने इक्वेशन 2 से करवा दिया। ये देखो हाँ ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, आपने किस इक्वेशन से किया, इक्वेशन 2 से किया। अब देखो r इज इक्वल टू आर ए प्लस से क्या, आर ए प्लस आर ए क्या आता है 2r a आ जाएगा, तो ये देखो 2r a आ जाएगा और डेल्टा r अपनी जगह पे डिवाइड बाई 2, तो 2r a बाई a आ जाएगा, डेल्टा r बाई 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आर ए प्लस डेल्टा r बाई 2, बिल्कुल वही वाला जो फर्स्ट ईयर में आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट के लिए किया था उसी तरह है, लेकिन यहाँ पर चार्ज है। चूंकि हमें फार्मूले में स्क्वायर चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइड का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए हो जाएगा, और बी 2ab क्या हो जाएगा 2ra डेल्टा आर बाई 2 आ जाएगा, और ये डेल्टा आर बाई 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। सिंस डेल्टा आर इज़ वेरी वेरी स्मॉल, सो द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म विल बी ऑलमोस्ट 0, यानी अगर डेल्टा आर 0.01 है तो 0.01 का स्क्वायर 0.00001 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे 4 आ जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा, तो उसको हम इग्नोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं। एज डेल्टा आर इज़ वेरी स्मॉल, सो इट्स हायर पावर आर इग्नोर्ड एंड डेल्टा आर स्क्वायर बाई 2 इज़ 0। तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर ए प्लस आर ए डेल्टा आर आ जाएगा। अब डेल्टा आर क्या है, आर बी माइनस आर ए के बराबर है। इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो इससे क्या आ जाएगा, आर ए आर बी आ जाएगा, यानी आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर किसके, आर ए और आर बी के। अब क्या करो, पुट दिस इन इक्वेशन, जो आपने किया है वर्क डन फ्रॉम बी टू ए किया है, उसमें आप पुट कर लो, तो क्या आ जाएगा के क्यों आर स्क्वायर के बजाय क्या आ जाएगा के क्यों नॉट, और आर स्क्वायर की जगह आर ए आर बी आ जाएगा, और डेल्टा आर की जगह आर बी आर ए, तो उससे क्या आ जाएगा के क्यों नॉट और आर बी माइनस आर ए डिवाइड बाई आर ए आर बी, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा के क्यों, ये देखो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास के क्यों नॉट आर बी, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आर बी डिवाइड बाई आर ए बी और माइनस आर ए सेपरेट, तो आर बी कट जाएगा, आर ए कट जाएगा, तो आपके पास वर्क डन फ्रॉम बी टू ए क्या आ जाएगा, के क्यों नॉट 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई आर बी आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज़ द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज। तो अब देखो, ये देखो हमने करवा दिया वी ए माइनस वी वी और डब्ल्यू फ्रॉम बी टू ए, के क्यों नॉट, और ये हमने सारा करवा दिया है। ये देखो जो आप पुटिंग की है उसमें, यानी इस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए को उसमें पुट कर दिया, तो ये आ गया आपके पास। अब चूंकि आपको पता है कि पॉइंट बी इज़ एट इन्फिनिटी, बी जो है वो क्या है, वो इन्फिनिटी पे है, पॉइंट बी इज़ एट इन्फिनिटी, पॉइंट बी इज़ एट इन्फिनिटी, पॉइंट बी जो है वो क्या है, इन्फिनिटी पर है। जब पॉइंट बी इन्फिनिटी पे है तो क्या आ जाएगा, ये वी ए आ जाएगा, और ये 1 बाई आर बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज इनफाइनाइट है। तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी के क्यों 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगा, के क्यों बाई आर ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के क्यों बाई आर ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
के क्यों डिवाइडेड बाई आर ए आ जाएगा। तो वी ए आ जाएगा आपके पास के क्यू बाई आर ए। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द point charge या source charge and inversely proportional to the separation between the point charge. So this is the electric potential at point A. In general it can be written as V is equal to KQ by R हो जाएगा। Thus electric potential at a point depends upon the amount of source charge, यानी V is directly proportional to Q, and distance from the source charge V is inversely proportional to R. तो ये हैं आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट विच इज़ अ फंक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। जितना पॉइंट चार्ज से आप दूर पॉइंट लोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ पर कम होगा, यानी जितना चार्ज से आप दूर होते जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जितना चार्ज के नज़दीक आते जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ती। जितने प्रोटॉन आपस में दूर हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम है, जब नज़दीक लाते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। सो दैट इज़ दी end of about that one. In the next lecture we will continue the same topic but with a little different ideas. Thank you very much.